children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Light and Human Eye. Introduction. How wonderful it is to possess a sense of sight. We see the world through our eyes. Eyes are the most important of the 5 sense organs. An object can be seen by us if light from it reaches our eyes. Now let us see what the human eye is made up of and how it works. 11.1 Human Eye. Eye is an important and delicate sense organ which provides us accurate information about our surrounding. आपको पता है आई हम लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारे सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब हम अपनी आइज़ के थ्रू देखते हैं, राइट. अपार्ट फ्रॉम इम्पॉर्टेंट, आपकी जो आइज़ है ये काफ़ी डेलिकेट ऑर्गन भी है आपका. लेयर्स ऑफ आइज़. द आई बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ hollow ball filled with liquid. The wall of the eyeball consists of 3 main layers. Number 1, sclera. The outer covering of the eye is a layer of tough whitish and opaque sheet of tissues called the sclera. Number 2, choroid. Inside the sclera is lined by a tissue layer called the choroid. This choroid prevents the internal reflection of light and protects the light sensitive inner parts of the eye. अब eye के 3 parts हैं. Number 1 है sclera जो outer covering है आपका. ओके, ये आपकी लेयर है टफ वाइटिश और ओपेक शीट ऑफ टिश्यूज़ की. फिर स्क्लेरा के अंदर ये आपका जो ये लाइंड है एक टिश्यू लेयर से जिसे कहते हैं कोरोइड, और ये क्या करता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होती है लाइट की उसको प्रिवेंट करता है और प्रोटेक्ट करता है लाइट सेंसिटिव इनर पार्ट ऑफ द अर्थ. Number 3, retina. The innermost layer, the retina, is sensitive to light. It has thousands of tiny nerve endings. When light falls on these nerve endings, they send signals to the brain along the optic nerve. The brain translates these signals into pictures. अब रेटिना आपका इनरमोस्ट लेयर है और ये सेंसिटिव है टू लाइट. इसमें thousands of tiny nerve endings है. तो जब लाइट जो है इन नर्व एंडिंग्स पे पड़ती है ये सिग्नल्स भेजते हैं ब्रेन को along the optic nerve. फिर ब्रेन ट्रांसलेट करता है इन सिग्नल्स को into pictures. Working of eye. At the front of the eye, the sclera is transparent and is called the cornea. A transparent film called the conjunctiva forms a protective layer over the cornea. At the center of the colored iris is an opening called the pupil. This allows the light to enter the eye. Tiny muscles in the iris control the size of the pupil. When the light is weak, it opens wide. देखिए आई के फ्रंट में स्क्लेरा आपका ट्रांसपेरेंट होता है, उसे कहते हैं कॉर्निया. ट्रांसपेरेंट फिल्म जिसे कहते हैं कंजक्टिवा, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं ओवर द कॉर्निया. और फिर कलर्ड आइरिस के सेंटर पे एक ओपनिंग होती है जो है आपका प्यूपिल. और इसका फंक्शन क्या है प्यूपिल का, ये अलाउ करता है लाइट को आई में एंटर करने के लिए. फिर छोटी मसल्स होती हैं आइरिस में, वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है. यानी कि जब लाइट स्ट्रांग होती है तो प्यूपिल छोटा हो जाता है और जब लाइट वीक होती है तो इट ओपन्स वाइड. Beneath the iris is the lens, a transparent structure that focuses the light onto the retina. अब iris के नीचे लेंस है आपका, एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जो लाइट को फोकस करते हैं onto the retina. Muscles and ligaments support the lens and controls its shape. अब जो मसल्स या ligaments होते हैं वो लेंस को सपोर्ट करते हैं, उसके शेप को कंट्रोल करते हैं. It is somewhat elastic and it can bulge in and out. This enables the lens to focus the light rays onto the retina from both near and distant objects at different times. If the lens cannot focus all the objects, the person has to wear spectacles. अच्छा, ये आपका इलास्टिक होता है और ये इन एंड आउट आपका बल्ज होता है. इससे क्या होता है कि ये लेंस को इनेबल करता है कि ये लाइट रेज को फोकस करे ऑन टू द रेटिना, मतलब नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दोनों से. अगर जो लेंस है वो फोकस नहीं कर पाता है सारे ऑब्जेक्ट को तो फिर पर्सन को स्पेक्स लगाने पड़ते हैं. इन द रेटिना देयर आर 2 kinds of light sensitive cells, rods and cones. Cones, which are clustered together near the middle of the retina, enable the person to distinguish the color of objects, but they are not sensitive and work only in good light. Rods, which are evenly spread over the retina, are much more sensitive but cannot distinguish color. For this reason, in dim lighting, people see objects in black and white. There are no rods or cones at the point where the optic nerve leaves the retina. This point is called blind spot because light falling onto it is not sensed.
Humans have binocular vision, means two-eyed vision. As the eyes are about 5 centimeters apart, they each see an object from a slightly different angle, and each eye swivels slightly as it focuses on an object. These two factors enable distances to be assessed. अब रेटिना में आपके दो तरह के लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जो हैं आपके रॉड्स एंड कोन्स. कोन्स ये आपके क्लस्टर्ड होते हैं साथ में रेटिना के मिडल पे, और ये कलर जो होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, इसकी हेल्प से हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं. बट ये सेंसिटिव नहीं होते इतने, और सिर्फ लाइट जब हो गई तभी वर्क करते हैं. जबकि रॉड्स इवनली स्प्रेड होते हैं ओवर द रेटिना, और ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बट ये कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. इसी वजह से जो डिम लाइटिंग में लोगों को चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नज़र आती हैं. इसके अलावा जो रॉड्स और कोन्स एट द पॉइंट जहाँ पे आपकी ऑप्टिक नर्व जो है वो रेटिना को लीव करती है ना, वहाँ पे रॉड्स और कोन्स नहीं होते, और इस पॉइंट को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि जो लाइट इस पर पड़ रही है उसको सेंस नहीं किया जा सकता है. ओके, अब ह्यूमंस के आपको पता है कि टू आइड विजन है, और ये जो आइज है दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, तो ये हर ऑब्जेक्ट को एक स्लाइटली डिफरेंट एंगल से देखते हैं. पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई. The eye is a natural lens fixed in its place by muscles. This lens has power to change its focal length, and so the person can see nearby as well as distant objects clearly. When someone sees a distant object, the parallel rays of light falling on the eyes are focused by the lens on the retina. Therefore, the object is seen distinctly. A normal eye can see an object distinctly at infinity, which is called the far point of the normal eye. In this case, the eye is relaxed and the focal length of the lens is maximum. देखिए, आई आपकी नेचुरल लेंस है जो अपने प्लेस पे आपके फिक्स्ड होती हैं मसल से. अब इन लेंस की पावर होती है कि वो उसकी फोकल लेंथ को चेंज कर देते हैं, इसीलिए पर्सन को नियर बाय और डिस्टेंट दोनों ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं. जब पर्सन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखता है तो जो पैरेलल रेज होती है ना लाइट की फॉलिंग ऑन द आइज, ये आपकी फोकस्ड होती है बाय द लेंस ऑन द रेटिना, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट आपको नज़र आता है डिस्टिंक्टली. तो नॉर्मल आई जो है वो आपकी इन्फिनिटी तक देख सकती है, एंड दिस इज नोन एज अ फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई. इस केस में आईज रिलैक्स्ड होती हैं, और जो फोकल लेंथ होता है लेंस का वो होता है मैक्सिमम. व्हेन ए पर्सन सीज अ नियर बाय ऑब्जेक्ट, द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द लेंस. Hence, the focal length of the lens decreases, and again a clear image of the object is formed at the retina. और जब पर्सन कोई पास की चीज़ को देखता है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे कि जो कर्वेचर है लेंस का वो इंक्रीज हो जाता है. तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है ना लेंस का वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज बनती है रेटिना पे. दिस पावर ऑफ चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन. As we see more and more nearby objects, more and more power of accommodation is applied. But there is a limit of applying power of accommodation. The nearest distance, d, up to which I can see clearly is called least distance of distinct vision. For normal eye, the distance d is 25 centimeter. Okay, तो ये जो पावर होती है आई की जिसमें फोकल लेंथ को चेंज कर देती है, दैट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन. अब जैसे हम नियर बाय चीज़ को देखते हैं, जितना पास का देखेंगे तो और ज़्यादा पावर ऑफ अकोमोडेशन का अप्लाई होगा, बट एक लिमिट तक ही होता है, राइट जो है आपका लीस्ट डिस्टेंस विच इज़ 25 सेंटीमीटर, यानी इससे कम डिस्टेंस में हमें पास की चीज़ें क्लियरली नजर नहीं आएंगी. डिफेक्ट्स ऑफ विजन. You must have seen people wearing spectacles to see close by as well as distance objects clearly. The two main defects of vision are, देखिए आपने लोगों को स्पेक्स लगाते हुए देखा होगा, कुछ पास की चीज़ों के लिए लगाते हैं, कुछ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लगाते हैं. ओके, तो चलिए डिफेक्ट्स पढ़ते हैं विजन के. नंबर 1, मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस. Ideally, the image formed by the lens should fall directly on the retina. In certain cases, the image falls in front of the retina or behind it. If the eyeball is too long, the image falls in front of the retina. A person that has difficulty seeing objects at a distance but no trouble seeing nearby objects. देखिए, ideally जो image आपकी लेंस बनाता है ये आपके इट शुड फॉल डायरेक्टली ऑन द रेटिना. तो कुछ केसेस में जो इमेज है वो या तो रेटिना के फ्रंट में बनती है या बिहाइंड बनती है. अगर आई बॉल आपकी ज़्यादा लंबी है तो जो इमेज है वो बनेगी रेटिना के फ्रंट पे. तो ऐसे में पर्सन को दूर की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम आएगी, बट हाँ वो पास के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. दिस कंडीशन इज कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस और myopia, which is caused by the lengthening of the eyeball or shortening of the focal length of the eyelids. तो ये कंडीशन होती है शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया, जो क्यों होती है आपकी
आई बॉल की लेंथनिंग की वजह से और या फोकल लेंथ की शॉर्टनिंग की वजह से ऑफ द आई लेंस. मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय using spectacles fitted with concave lenses which diverge the rays and focus them on the retina. तो मायोपिया को करेक्ट किया जा सकता है कनकेव लेंसेज के थ्रू, यानी जो लोग मायोपिया को करेक्ट करना चाहते हैं उन्हें स्पेक्स दिए जाते हैं जिसमें कनकेव लेंसेज का यूज़ किया जाता है. नंबर 2, हाइपोमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस. If the eyeball is too short, the image is focused behind the retina. The person can see distant objects clearly but has difficulty with nearby objects. This problem is called long-sightedness or hypermetropia, which is caused due to too short eyeball and too long focal length of the eye lens. Okay, अब अगर eyeball बहुत छोटी है तो image जो है वो कहाँ पे focus होगी? Behind the retina. यानी person को distant object तो clearly नज़र आएगा but उसको पास की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होगी. तो ये कंडीशन आपकी होती है लॉन्ग साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया. क्यों होती है? क्योंकि जो बिकॉज ऑफ टू शॉर्ट आई बॉल एंड टू लॉन्ग फोकल लेंथ ऑफ द आईज, राइट. Hypometropia can be corrected by using spectacles fitted with concave lenses. These lenses converge the incident rays so that they can now be focused properly on the retina. अब hypometropia को करेक्ट किया जाता है स्पेक्स यूज करके जिसमें आपके होते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज. Some older people's eyes cannot see both the nearer and farther objects clearly. To correct this defect, they have to wear two kinds of spectacles at different times. While reading, they use convex lens spectacles. While walking, they use concave lens spectacles. Nowadays, various types of convexo-concave lenses are used to correct myopia and hypometropia. अब जैसे जो एल्डरली पीपल होते हैं उनको पास का कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पास का भी क्लियरली नज़र नहीं आता, दूर का भी नहीं आता, तो फिर वो क्या करते हैं, इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए दो तरह काइंड ऑफ स्पेक्टिकल्स को यूज़ करते हैं, है ना. रीडिंग के लिए वो कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज़ करते हैं और जो वॉक करते हैं कहीं जाते हैं तो फिर वो कनकेव लेंसेज का यूज़ करते हैं. बट अब वेरियस टाइप ऑफ कन्वेक्सो कॉन्केव लेंस आते हैं जिससे कि मायोपिया या हाइपोमेट्रोपिया को करेक्ट किया जा सकता है, राइट. 11.2 ब्लाइंडनेस. Thus, it can be rightly concluded that if the cornea, the lens, the retina, or the optic nerve of a person's eye fail to perform their functions properly, the person loses his power to see. Thus, when a person cannot see anything or becomes unable to see anything, this condition is called blindness. Blindness may be congenital or acquired. Congenital blindness is the condition when a person is born blind. In this condition, the eye lens become opaque before birth. It may be an effect of some medicines taken by the mother during pregnancy. Acquired blindness occurs due to a person who is born with good eyesight but becomes blind afterwards, mainly due to diseases such as cataract and glaucoma. Sometimes a person's retina is damaged due to mistreating an eye disease such as conjunctivitis. An accidental injury to a person's eye may also cause blindness. देखिए, अगर कॉर्निया, लेंस, रेटिना या जो ऑप्टिक नर्व एक पर्सन की आई के वो उनका फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो पर्सन क्या करेगा, वो देख ही नहीं पाएगा, है ना. तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है ब्लाइंडनेस. अब ये दो तरह से होता है. आपका एक होता है जहाँ पे पर्सन जब बॉर्न होता है तो वो ब्लाइंड होता है. इस कंडीशन में जो आई लेंसेज होते हैं आपके वो ओपेक होते हैं बिफोर बर्थ, और ये किसी जैसे कि मेडिसिन की इफेक्ट की वजह से होता है जो मदर लेती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. नेक्स्ट वन इज़ नेक्स्ट टाइप की जो आपकी ब्लाइंडनेस है ये कब होती है कि मतलब जब कोई पर्सन पैदा हुआ है तो उसकी अच्छी आई साइट है बट वो ब्लाइंड हो जाता है किसी डिसीज़ की वजह से, जैसे कैटरैक्ट या ग्लूकोमा की वजह से. कई बार पर्सन के जो रेटिना है वो डैमेज हो जाता है, जैसे कि कोई आई डिसीज़ को आपने मिस ट्रीट कर दिया, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस. एक्सीडेंटल इंजरी से भी क्या होता है, पर्सन की आइज़ को डैमेज हो सकता है, उसको वो ब्लाइंड हो सकता है. 11.3 द वर्ल्ड अराउंड द ब्लाइंड पीपल. People who cannot see have their other senses more developed. They acquire a acute sense of touch. Their sense of hearing and smell is generally sharp, and they feel and sense the world through these developed senses. Moreover, they have amazing power of concentration. However, what has brought about a revolution to the world of the blind is the technology known as a Braille system. It was invented by a Frenchman, Louis Braille, in 1819, and his system is now used all over the world for all written languages.
देखिए जो लोग देख नहीं सकते ना, उनकी जो दूसरी सेंसेस होती है ना वो ज़्यादा डेवलप हो जाती है, मतलब कि उनका जैसे सेंस ऑफ टच है, हियरिंग और स्मेल वो जनरली शार्प होता है, तो वो फील करते हैं, सेंस करते हैं वर्ल्ड को इन डेवलप्ड सेंसेस के थ्रू। और सबसे बड़ी बात कि उनका कॉन्सेंट्रेशन का पावर काफ़ी अच्छा होता है। तो अब देखिए आज के टाइम पे ब्लाइंड लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू, जो कि इन्वेंट किया था एक फ्रेंचमैन ने जिनका नाम था लुई ब्रेल 1819 में। Braille system. Braille is a method of writing that blind people can read and understand. Each letter of the alphabet is represented by a pattern of raised dots on a page. A blind person can touch and understand these by running his fingers rapidly over the raised characters. अब ये सिस्टम क्या होता है, इसमें ना आपकी अल्फ़ाबेट्स होते हैं और इसमें ना रेज्ड डॉट्स होते हैं, मतलब जिसे जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उसको टच करके रिकॉग्नाइज करते हैं। पैटर्न. Each Braille character contains up to 6 dots in a pattern. The pattern is up to the 3 dots high and 2 dots wide. Characters. There are 63 combinations of dots altogether. In addition to letters of the alphabet, the characters stand for simple words and combination of letters as well as numbers and punctuation marks. Thus, 1 dot means A and 6 dot means 4. Braille can be read at a speed of 200 words a minute, which is about half the reading speed of a rapid reading person with sight. Writing. A blind person can write Braille by using a Braille writer, a machine like a simple typewriter. अब देखिए इसमें क्या होता है, हर ब्रेल में ना आपके 6 डॉट्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं में 6 डॉट्स होते हैं पैटर्न में। तो पैटर्न आपका 3 डॉट्स होता है, अप टू 3 डॉट्स हाई और 2 डॉट्स वाइड। ओके, 63 कॉम्बिनेशंस है इसमें डॉट्स के ऑल टुगेदर। अल्फ़ाबेट्स के जो लेटर्स हैं, इसके अलावा आपके सिंपल वर्ड्स हैं, लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, नंबर्स है, पंक्चुएशन मार्क्स है। और एक डॉट जो है उसका मतलब होता है, लाइक एक डॉट का मतलब है ए और 6 डॉट्स का मतलब होगा 4। ओके, तो ब्रेल जो है वो रीड कर सकते हैं 1 मिनट में 200 वर्ड्स, जो कि आपका कितना होता है, हाफ द रीडिंग स्पीड ऑफ अ रैपिड रीडिंग पर्सन विद साइट। ब्लाइंड पर्सन जो है लिख सकता है इसको ब्रेल राइटर की मशीन से। ये आपका मशीन है जैसे कि सिंपल टाइप राइटर होता है उसकी तरह। 11.4 Care for the eyes. You know that vitamins help to regulate growth and normal functioning of the body. Without a regular supply of certain vitamins, parts of the body, including the eyes, begin to function poorly. When the body does not get enough of a certain vitamin, the person could come down with a vitamin deficiency disease. However, the body needs small amounts of vitamins. The eye needs the following vitamins. Vitamin A. Vitamin A is needed for maintenance of the eyes. It is found in liver and kidney, fish liver oils, eggs, butter, green and yellow vegetables, sweet potatoes, yellow fruits and tomatoes. Deficiency of vitamin A may cause night blindness, especially in children, which makes them difficult to see at night or in dim light. Riboflavin, B2 or G, is required for proper functioning of the eyes and is found in milk, cheese, fish, fall, meat, green vegetables, liver, eggs and yeast. देखिए vitamins हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर रेगुलर सप्लाई नहीं मिलेगा कुछ सर्टेन वाइटामिन्स का, तो कुछ बॉडी पार्ट्स हैं हमारे जिसमें आपकी आइज़ भी इंक्लूडेड होती है, फिर वो पुअरली फंक्शन करेंगे। ओके, इसीलिए हमें वाइटामिन रिच आपकी डाइट लेनी चाहिए, हालांकि थोड़े से अमाउंट में ही चाहिए होता है। तो देखिए कौन से वाइटामिन्स इंपॉर्टेंट है आइज़ के लिए। वाइटामिन ए, ये आइज़ की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, अब देखिए इसके सोर्सेज हैं आपके पास कौन से हैं। आपके जितनी भी येलो फ्रूट्स होते हैं, येलो वेजिटेबल्स होते हैं, राइट, इनमें आपका विटामिन ए पाया जाता है। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो गई तो उसकी वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, स्पेशली इन चिल्ड्रन, जिससे क्या होता है कि डिम लाइट में उनको नज़र नहीं आता, नाइट में या डिम लाइट में। दूसरा है आपका राइबोफ्लेविन। ये देखिए, ये आपको कहाँ से मिलते हैं, ये इनके सोर्सेज हैं। ये भी आइज़ की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। की पॉइंट्स: The various parts of the eye are the cornea, iris, choroid, sclera, pupil, lens, and retina. The nearest distance up to which eye can see clearly is called the least distance of distinct vision. For normal eye, this distance is 25 centimeter. Blindness may be congenital or acquired. Braille is a method of writing that blind people can read and understand. चिल्ड्रन, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हाउ आइज़ आर इम्पॉर्टेंट टू अस, किस तरह से आइज़ फंक्शन करती है, किस तरह से उसके डिफेक्ट्स जो होते हैं उसको करेक्ट किया जा सकता है, राइट।
इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।